Good morning, students. Hope you all are doing good at your homes. So today we are going to start with a new topic, which is reaction of metals with non-metals. Okay. तो आज हम लोग पढ़ेंगे reaction of metals with non-metals. Okay. So before starting our topic, we will list down some important points and we will discuss them. Okay. So what is the actual mean of reactivity of an element? Okay. So reactivity of the element is the tendency to attain a completely filled वैलेंस शेल. ओके. तो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है? वो उसकी टेंडेंसी होती है क्या अटेन करने के लिए? कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल को अटेन करने के लिए. ओके. और वैलेंस शेल क्या होता है? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंस शेल. ओके. तो वैलेंस शेल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसका, उसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं. ओके. सो व्हाट इज द वैलेंस शेल? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स valence shell. So now I am going to write it down the point. Okay students, so reactivity of the element is the tendency to attain a completely filled valence shell. ओके. एंड वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल किसी भी एलिमेंट का, उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. Na means sodium and its atomic number is what? 11. इसका atomic number क्या है? 11. Okay. So now I am labeling the shells 1, 2 and 3. Okay. So how many electrons are there in the first shell of sodium? 2. Second shell 8 are there. Okay. Now see, 10 electrons are already filled. Now how many are remaining? Only 1. So 1 electron is there in its outermost shell. Okay students, see we have written down the electronic configuration of sodium. In sodium, in first orbit or in first shell there are only 2 electrons. In second shell there are 8 electrons, and in the outermost shell, that is the valence shell, there is only 1 electron is there. Okay. And what is the reactivity? It is the tendency to attain a completely filled valence shell. Okay. और जो completely filled valence shell होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑक्टेट बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल. ओके. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1. ओके. तो अब या तो ये हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे. देयर आर 2 पॉसिबल केसेस दैट it gains 7 electrons. Okay. which is not possible because it will require a higher amount of energy. वो पॉसिबल नहीं है ये किसी और एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, क्योंकि उसके लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. बट इन सेकेंड केस व्हाट इज देयर? सी सेकेंड केस में क्या होगा? यहाँ पर देखिए आप, इन आ सेकेंड शेल देयर आर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. एंड इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1. सो इट कैन ईजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन. ओके. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ईजिली इसको डोनेट कर देगा. ओके. एंड व्हेन okay students, so in this order, this one is the electronic configuration and this one is the diagram or the structure of the sodium atom. Okay. So how it is possible? See, 2 electrons are there in the first shell. See, 2 are there, 1 and 2, and this shell is known as what? K shell or first shell. In second shell there are how many electrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrons are there. This one is L shell, and this one is third shell, M shell. Okay. And how many electrons are there? Only 1. Okay. So this one is the valence shell. outermost shell किसी भी एटम का, एलिमेंट का, हम उसको वैलेंस शेल बोलते हैं. ओके. वो फोर्थ शेल भी हो सकता है, सेकेंड शेल भी हो सकता है. ओके. फिफ्थ शेल भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट. जैसे अगर किसी एलिमेंट में फॉर एग्जांपल इन नियॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ओके. तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका आउटर मोस्ट शेल यही वाला रह जाएगा, 2, 8. ये कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्ड वाले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ओके. सो जो लास्ट शेल होता है उसी को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं. ओके. यू ऑल मे बी वंडरिंग दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल्स. ओके. विच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू recall that thing. Okay. So you have studied about the Bohr's formula. So what was Bohr's formula? It is 2n square. Okay. And where n क्या है? वहाँ पर n क्या है? Where
n इज द शेल नंबर, जहाँ पर n क्या है, शेल का नंबर है. ओके, नंबर इट इज इन शॉर्ट फॉर्म NO डॉट नंबर. ओके, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द फर्स्ट शेल? सी, फर्स्ट शेल में k इक्वल्स टू व्हाट, 1. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सी 2n² यानी n की वैल्यू कितनी है, 1. फर्स्ट शेल है इसलिए, तो 2 × 1 विच कम्स आउट टू बी 2. ओके, सेकेंड शेल l इक्वल्स टू 2. ओके, तो n की जगह पे हम लोग वहाँ पर 2 रखेंगे, सो इट विल बी 4 and it will be comes out to be 8. So 8 electrons will be there in the second shell. Okay, likewise we used to fill the shells. And how many electrons the third shell can occupy or can accommodate? So 2 × 9 which comes out to be 18. Okay, तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स. बट लेकिन हमारा जो एलिमेंट है सोडियम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं लास्ट शेल के लिए? ओनली 1. सो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट. ओके, सो we have studied about the definition of reactivity. What does the definition of reactivity say? That reactivity of the element is the tendency to attain a completely filled valence shell. Okay, तो reactivity क्या होती है एलिमेंट की किसी भी, कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर शुड बी देयर इन द आउटर मोस्ट शेल? 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर. ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. ओके, सो नाउ टेल मी which thing is possible. Only 2 cases are there. That first case is that it can accept 7 electrons. पहला केस क्या है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस. ओके, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ सी द सेकेंड शेल. सेकेंड शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो नाउ दिस सोडियम एलिमेंट or sodium atom can easily donate 1 electron to attain the octet configuration. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ईजिली इसको डोनेट कर सकता है, और जब उसको डोनेट कर देगा तो आउटर मोस्ट शेल तो खत्म हो जाएगा. ओके, देयर विल बी नो आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि आखिरी शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन था, जब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर किस बात का आउटर मोस्ट शेल? ओके, तो आउटर मोस्ट शेल तो खत्म हो गया. देन now which one is the outermost shell? This one. Second shell will be its outermost shell. And how many electrons are there in it? 8 electrons are there. Okay, तो ऐसे ही एलिमेंट्स जिनके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 से कम होते हैं, which are having electrons less than 4 donates their electron to complete its octet. Okay, तो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेते हैं. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स. ओके, उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. ओके, सो क्लोरीन Cl17. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17. ओके, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट्स फर्स्ट शेल? 2 आर देयर. इन सेकेंड शेल 8 आर देयर. एंड इन थर्ड शेल इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे कितने? 10 तो अकोमोडेट हो गए, रह कितने गए? 7. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7. नाउ सी, अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे और आउटर मोस्ट शेल में पहुंचेगा तो ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए इजी वर्क क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, +1 अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका. ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज ईजियर फॉर क्लोरीन? फॉर क्लोरीन इट इज़ ईजियर टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, पहले केस में क्या था कि सोडियम को क्या आसानी थी कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, बट इन केस ऑफ क्लोरीन व्हाट विल बी इजियर फॉर क्लोरीन? टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले. ओके, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको. तो
एक तो ये हो सकता है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर दे, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले. सो व्हाट विल बी ईजी, 7 को डोनेट करना ईजी होगा कि एक को एक्सेप्ट करना. एक को एक्सेप्ट करना विल बी मच ईजियर. ओके, सो व्हाट विल क्लोरीन डू, इट विल सिंपली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल. ओके, तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. ओके, एंड द एलिमेंट्स विच आर हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट दे विल डू, दे विल डोनेट एंड दे आर कॉल्ड एज मेटल्स. उनको क्या बोलते हैं हम, मेटल्स बोलते हैं. एंड द एलिमेंट्स विच यूज टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन मेटल्स. ओके, सो द एलिमेंट्स विच आर हैविंग more than 4 electrons in the outermost shell are the characteristic property of the non-metals. Okay, तो non-metal के outermost shell में 4 से ज़्यादा electrons होते हैं. Okay, and what do they will do, they will simply accept the electron from the metals. Okay, जो metal electron को donate करेगा वो उसको accept कर लेंगे. Okay, and अब आप लोग सोच रहे हो कि उनके पास 4 होते हैं, वो क्या करते हैं, वो sharing करते हैं. Okay, वो sharing करते हैं. In the similar way, see, the compound NaCl is formed. Okay, how the compound NaCl is formed? See, Na is having how many electrons, 11 electrons are there. Okay, so what it will do, it will simply donate 1 electron. वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा. दिस वन इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, +1. ओके, सो एज मैनी एज इलेक्ट्रॉन इट विल लूज, इट विल हैव 1 or 2 पॉजिटिव चार्ज. अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते तो यहाँ पे +2 होता. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मैग्नीशियम, इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. सो व्हाट विल बी देयर, Mg gives Mg2+ and 2 electrons. Mg 2 electrons देके यहाँ पर 2+ चार्ज ले लेगा. ओके, एंड व्हाट क्लोरीन इज डूइंग हियर, सी, दिस क्लोरीन is accepting this electron from sodium atom and converting it into its anion Cl-. ओके, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर हमने ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है एंड हियर इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज बियरिंग 1 नेगेटिव चार्ज. ओके, सो मेटल्स ऑलवेज फॉर्म व्हाट, मेटल हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन, कैटायंस. एंड नॉन मेटल्स फॉर्म व्हाट, एनायन. ओके, तो अब ये कैटायन एनायन क्या है, द स्पीशीज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड एज कैटायंस. जो जिन स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायंस बोलते हैं. एंड द स्पीशीज बियरिंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एज व्हाट, एनायंस. ओके, तो जो स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें कैटायन बोलते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनायन बोलते हैं. तो मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, मेटल्स विल फॉर्म कैटायन बिकॉज मेटल्स विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन. जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, सो मेटल्स विल फॉर्म कैटायन, एंड वेयर एज ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन. तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और एनायन फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा. ओके, सो मेटल से क्या फॉर्म होगा, मेटल से क्या फॉर्म होगा, मेटल्स से कैटायन, एंड फ्रॉम नॉन मेटल anion will be there. So metals loses electron from their valence shell to complete to form cations. तो metals क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं अपने वैलेंस शेल से, क्या फॉर्म करने के लिए, कैटायंस फॉर्म करने के लिए. whereas on the other hand non metals gain electron in their valence shell to form anions. Okay, so these are few important points we should know about the before starting with the reaction of metals with non-metals. So first point was that reactivity of the element is the tendency to attain a completely filled valence shell. तो reactivity क्या होती है कि element की tendency कि वो attain कर सके completely filled valence shell को. Okay, and the second an important point was that metals loses electrons from their valence shell
टू फॉर्म कैटायंस। मेटल्स अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो कैटायन फॉर्मेशन टेक प्लेस हो सके उनका। एंड वेयर एज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। ओके, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड टू फॉर्म देयर एनायंस, अपने एनायन को फॉर्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द new topic, that is ionic compounds. Okay students, so we'll be starting with the ionic compounds tomorrow, and we will study in detail about the reaction of metals with non-metals. Okay students, goodbye.